Hello everyone, welcome to my channel HSV Human Study Vlog. Today we discuss the topic biological fluids. So let's start. The most commonly examined body fluids in the laboratory are: first, serous fluids such as pleural present around the lungs. Second, peritoneal fluid present around the abdominal and pelvic cavities. Second is synovial fluid present around the joints. These fluids are grouped as extracellular fluids as they exist outside the blood vessels. So ये fluids हैं जो ये grouped as extracellular fluids हैं क्योंकि ये exist करते हैं blood vessels के outside में. These specimens are collected by the attending physician or the registered nurse. So जो ये specimen है ये collect होते हैं by the physician or the nurse. So today we discuss the first fluid, pleural fluid. Today we discuss only one fluid. So in upcoming videos we discuss more fluids, but today we discuss only one pleural fluid. So first is introduction. The pleura is a serous membrane which folds back onto itself to form a two-layered membrane structure. So pleura के एक serous membrane है which folds back onto itself. तो क्या फॉर्म करता है? टू लेयर्ड मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. तो मेन जो प्लूरा है वो एक मैम्ब्रेन का बना होता है और जो ये मैम्ब्रेन है ये दो लेयर्स की बनी होती है और ये लंग्स की कवरिंग करता है एज वेल एज चेस्ट कैविटी की भी कवरिंग करता है. द थिन स्पेस बिटवीन द टू प्लूरल लेयर्स इज नॉन एज द प्लूरल कैविटी. सो जो थिन स्पेस है दो प्लूरल लेयर्स के बिटवीन जो थिन स्पेस है इज नॉन एज, उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी विच सराउंड द लंग्स, जो सराउंड करती है लंग्स को. इट नॉर्मली कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड. सो ये नॉर्मली प्लूरल फ्लूइड को जो क्वांटिटी है उसकी स्मॉल क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी उसकी कंटेन करती है विच अलो द प्लूरा टू स्लाइड एफर्टलेसली अगेंस्ट ईच अदर ड्यूरिंग वेंटिलेशन. जो अलो करता है प्लूरा को to slide effortlessly against each other during ventilation के दौरान. Pleural effusion is excess fluid that accumulates in the pleura. So pleural effusion means कि जो बॉडी में जो pleural fluid है वो excess हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं pleural effusion. तो ये एक excess fluid है जो accumulate करता है प्लूरा में. The fluid filled space that surrounds the lungs. So जो fluid filled space है वो surround करती है lungs को. Excessive amount of such fluid can impair breathing by limiting the expansion of the lungs during respiration. So respiration के दौरान जो lungs हैं वो अपनी proper limit के मतलब जो होती है उसको properly expand नहीं कर पाते. So उसमें क्या है, जो breathing है वो इम्पेयर हो जाती है. बॉडी में फ्लूइड एक्सेसिव हो गया है, एक्सेसिव होने के कारण जो ब्रीथिंग है वो इम्पेयर हो गई है. प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं हो पा रही, ब्रीथिंग नहीं आ पा रही, लंग्स प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि बॉडी में क्या हो गया है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट हो चुका है. सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड. Pleural fluid is formed from the systemic vessels of the pleural membrane with the flow rate of approximate 0.6 ml per hour. So जो pleural fluid है ये form हो रहा है कहाँ से? From the systemic vessels of pleural membrane और flow rate क्या है इसका? 0.6 ml per hour and is absorbed by the peripheral pleural lymphatic system at a similar rate. और ये अब्जॉर्ब हो रहा है लंग में जो प्रेजेंट है, ये लंग्स में प्रेजेंट है पेरिशियल प्लूरल लिम्फेटिक सिस्टम, उसके थ्रू ये अब्जॉर्ब हो रहा है. तो जितना ये बन रहा है उतना ही सिमिलर रेट पे ये अब्जॉर्ब हो रहा है. इसीलिए एक नॉर्मल पर्सन में जो इसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है. नेक्स्ट इज फंक्शन. द फ्लूइड एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग. सो जो ये फ्लूइड है ये एक्ट करता है as a lubricant for the movement of lungs during breathing. Next is normal composition of pleural fluid.
So volume is 0.2 ml per kg. Appearance clear. White blood cells less than 500 cells per cubic mm. Lymphocyte 23%. Macrophages 75%. Mesothelial cells 1 to 2%. Eosinophil 0%. Neutrophil 1%. Protein 1 to 2 gram per dl. Glucose 90 to 120 milligram per dl. So this is a normal composition of pleural fluid. Next is pleural fluid effusion. A pleural effusion is a built-up of extra fluid in the space between the lungs and the chest wall. So lungs और chest wall की जो space है between, उसमें extra fluid built up हो जाता है जिसको हम कहते हैं pleural effusion. So see in the picture, left hand side normal lung और जो प्ल्यूरा है वो उसकी आउटर कवरिंग में प्रेजेंट है. राइट हैंड साइड में कंप्रेस्ड लंग है जिसमें प्ल्यूरल एफ्यूजन हुआ पड़ा है, मीन्स एक्स्ट्रा प्ल्यूरल फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें. सो प्ल्यूरल एफ्यूजन हो गया है वहाँ. द नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ प्ल्यूरल फ्लूइड. थोरासेंटेसिस इज अ प्रोसीजर यूज्ड टू रिमूव द एक्सेस प्ल्यूरल फ्लूइड फ्रॉम द प्ल्यूरल स्पेस. सो जो थोरासेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो रिमूव करता है, जिसको हम यूज़ करते हैं एक्सेस प्ल्यूरल फ्लूइड जो प्ल्यूरल स्पेस में प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए. इट इज़ परफॉर्म्ड यूजिंग अ नीडल इंसर्टेड इनटू द प्ल्यूरल स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल. सो ये कैसे परफॉर्म होता है? नीडल को इंसर्ट करते हैं प्ल्यूरल स्पेस में. अब प्ल्यूरल स्पेस बिटवीन कहाँ प्रेजेंट है? प्ल्यूरल स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल. तो वहाँ हम जो नीडल है उसको इंसर्ट करते हैं जिसके थ्रू जो एक्सेसिव प्ल्यूरल फ्लूइड है वो बॉडी में से रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. सो फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन विच इंक्रीज्ड प्ल्यूरल फ्लूइड. सो इंक्रीज हो जाती है कैपिलरी परमेबिलिटी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से जो प्ल्यूरल फ्लूइड है वो इंक्रीज हो जाता है. अब कैपिलरी परमेबिलिटी क्या होती है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है कैपिलरी वॉल की जो एनेबल करती है सब्सटेंसेस इन द ब्लड टू पास इनटू द टिश्यू स्पेसिस और इनटू द सेल, जिसकी वजह से कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है और प्ल्यूरल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज सिस्टमिक और पल्मोनरी वीनस प्रेशर. सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू सिस्टमिक पल्मोनरी वीनस प्रेशर इंक्रीज. थर्ड पॉइंट इज डिक्रीज इन प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू हाइपोप्रोटीनीमिया. सो जो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू हाइपोप्रोटीनीमिया. अब हाइपोप्रोटीनीमिया क्या होता है? जब बॉडी में प्रोटीन लेवल कम हो जाता है, लेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोप्रोटीनीमिया. और प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है? ये जनरेट होता है बाय प्रोटीन. सो अगर बॉडी में जो प्रोटीन लेवल है वो ही डिक्रीज हो गया तो जो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट इज डिक्रीज इन लिम्फेटिक ड्रेनेज ड्यू टू इन्फ्लामेशन और ट्यूमर. लिम्फेटिक ड्रेनेज डिक्रीज होगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन और ट्यूमर. सो दिस इज ऑल अबाउट द pleural fluid. Please like, share, comment on my channel. If you like my videos, so please subscribe my channel. Thanks for watching.